Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रोरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 23 चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, now we are going to cover up next topic, which is corrective measures. It is thus clear that democracy in India faces certain serious challenges. These are causes of serious concern to all. In fact, the leadership of the freedom movement and especially the framers of the Indian constitution themselves were very much aware of these issues. They made a number of constitutional provisions to address the same. Since independence, governments have taken various measures to respond to many of these challenges. There have been significant improvements in some of these. However, lots still have to be done. For that, efforts have been going on. There is need for collaboration among governmental agencies, political parties, civil society, and citizens in general. Certain significant corrective measures that have been adopted and can be initiated are as follows. तो इससे ये क्लियर होता है कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया का, इसमें बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस है और ये जो कारण है सीरियस चैलेंज का, उसके अलग अलग कारण की कौन कौन सा सीरियस चैलेंज हमारे डेमोक्रेसी को है। इनफैक्ट ये जो लीडरशिप है फ्रीडम मूवमेंट का, स्पेशली जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो लोग अवेयर थे कि हाँ ये सब चीज़ें हम लोग को इश्यू आने वाली है। एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी बनाए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सके। जब हमारा जो इंडिपेंडेंस हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे जो गवर्नमेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे वो इस चैलेंज के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर सके और अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए जा रहे हैं एंड बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने बाकी भी है और ये धीरे धीरे होगा। एंड हम लोग को एक ज़रूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन हो, जो भी गवर्नमेंटल एजेंसीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी या फिर सिटीजन्स है, सबका कोलैबोरेशन हो जिससे हम लोग को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ हम लोग करेक्टिव मेजर्स देखेंगे जिसको अडॉप्ट किया गया है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। यूनिवर्सल लिटरेसी एजुकेशन फॉर ऑल. The significance and necessity of education for efficient functioning of democracy was appreciated by the framers of the Indian Constitution, which is why free and compulsory education to all children up to the 14 years of age continued to remain constitutional commitment in India. Various governments at national and state levels have been making efforts to attain this goal. As a follow-up of the National Policy on Education 1986, a National Literacy Mission was set up in 1988 to plan and implement programs for the removal of illiteracy under the platform Sarva Shiksha Abhiyan. But the goal of universal literacy is yet to be attained. Currently, a nationwide program known as Sakshar Bharat is being implemented. It aims at developing functional literacy and numeracy to non-literate and non-numerate adults in the age group of 15 and above to enable them to continue their learning beyond basic literacy and acquire equivalence to formal education. The Sarva Shiksha Abhiyan is a flagship program for universalization of elementary education for children between 6 to 14 years of age. Further, the Parliament of India in 2009 passed the Right to Education Act, through which education has become a fundamental right for all children of age group 6 to 14 years. ये जो हम लोग का एक सिग्निफिकेंस है या फिर जो हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा का जो भी ज़रूरत है वो एक बहुत हम लोग के लिए एफिशिएंट साबित हो सकता है हम लोग के डेमोक्रेटिक
कंट्री के लिए। एंड इस चीज को अप्रिसिएट किया गया है, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने इस चीज को अप्रिसिएट भी किया है। इसलिए इन लोगों ने एक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को बनाया है। एंड इन्होंने जो भी एज ग्रुप है बच्चों का 14 साल तक, इनको इन्होंने बनाया है कि ये लोग, इनके अधिकार है कि ये लोग शिक्षा को ग्रहण कर सके। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट भी है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जो नेशनल या फिर स्टेट लेवल्स पे बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि वो इस गोल को अचीव कर सके। इसको फॉलो करने के लिए जो नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन पे 1986 में बनाया गया था एक नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसका 1988 में इसको सेटअप किया गया था। एंड ये प्लान को और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था प्रोग्राम का, जिसमें लोगों को क्या करना था कि इसमें इलिटरेसी को रिमूव करना है एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है सर्व शिक्षा अभियान का, जिसमें जो लोग हैं वो यूनिवर्सल लिटरेसी का जो गोल है उसको वो अटेन कर सके। करंटली एक नेशन वाइड प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम लोग साक्षर भारत बोलेंगे, एंड ये लागू किया गया है। इसका लक्ष्य है कि ये हम लोग का जो भी लिटरेसी है या फिर न्यूमरेसी है, जो नॉन लिटरेट पर्सन है, जो नॉन न्यूमरेट एडल्ट है, जिनका एज ग्रुप 15 या उससे अबव है, उनको ये लोग इनेबल बना सके, उन्हें ये लोग सक्षम बना सके कि वो भी इनका जो भी बेसिक लिटरेसी है वो उसको कंटिन्यू कर सके एंड इनका फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा सा मजबूत हो सके। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को इसको यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है, जो भी चिल्ड्रन जिनका एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स है। इन सब के अलावा जो पार्लियामेंट है इंडिया का, उसने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट RT को पास किया था, जिसमें एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया था जितने भी चिल्ड्रन एज ग्रुप जिनका 6 to 14 ईयर्स है। पॉवर्टी एलिविएशन। From the 1970s, a number of programs have been implemented for alleviation of poverty in India. These programs fall into two broad categories. There are programs to lift beneficiaries above poverty line by providing them with productive assets or skills or both, so that they can employ themselves usefully and earn greater income. Programs are also being implemented to provide temporary wage employment for the poor and the landless. तो 1970 से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम को लागू किया गया है जिससे गरीबी को हटाने का भारत में निश्चय किया गया है। एंड ये जो प्रोग्राम है वो दो कैटेगरीज में है। एक ऐसे प्रोग्राम है जो गरीबी को, जो गरीबी लाइन है उसको वो खत्म करना चाहता है एंड वो तैयार करना चाहता है स्किल्स और प्रोडक्ट एसेट्स को, मीन्स जो लोग हैं वो गरीबी से हटके एंड खुद वो एम्प्लॉय कर सके और इससे उनका बहुत इनकम हो सकता है। एंड दूसरा कैटेगरी है कि जो प्रोग्राम्स को सेट किया गया और लागू किया गया है जिससे उनको टेम्प्रोरी वेज एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो पुअर और जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनका किसी तरह से टेम्प्रोरी वेज एम्प्लॉयमेंट हो सके। Similarly, the Jawahar Gram Samriddhi Yojana JGSY is a program for the creation of rural economic infrastructure with employment generation as a secondary objective. The program is implemented by the village panchayats and since its inception it has generated 27 crore main days of employment each year. The Employment Assurance Scheme EAS covers 1,778 drought-prone desert, tribal and hill area blocks. The program was designed to provide employment in the form of manual work in the lean agricultural season. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) is being implemented to enhance the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing 100 days of wage employment in a financial year to a rural household whose adult members volunteer to be unskilled manual work. तो जो भी ये प्रोग्राम है उन सब के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ना, इसके बारे में एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि JGSY किया है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मनरेगा किया है, फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम क्या है, इन सबको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ना। जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है, इसमें एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के तौर पे। इन प्रोग्राम को लागू किया गया है विलेज पंचायत के द्वारा
और इसमें 27 करोड़ मेन डेज, इसमें जब ये प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है इसमें 27 करोड़ जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। एंड ये जो एम्प्लॉयमेंट एज्योर हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट एज्योरेंस स्कीम EAS, इसमें 1778 जहाँ पे सूखा जो क्षेत्र है, डिजर्ट है, या फिर जहाँ पे आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं, हिल एरिया से ब्लॉक है, वहाँ को ये कवर करता है। एंड ये जो प्रोग्राम है वो डिजाइन किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो लोग लीन एग्रीकल्चर सीजन में मैनुअली हाथ से वो वर्क कर सके। हमारा एक तीसरा प्रोग्राम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज मनरेगा। ये इसका लागू किया गया कि जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए इसमें गारंटी किया जाता है कि आपका जो 365 डे होता है उसमें से जो 100 दिन आपको काम मिलेगा। एंड आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर या फिर जो रूरल हाउस होल्ड है जिसके जो एडल्ट मेंबर्स है, वॉलंटियर या फिर अनस्किल्ड है, वो मैनुअली यहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको 100 दिन का गारंटी दी जाती है कि उनको डेली बेसिस पे मनी पेमेंट भी किया जाएगा। Elimination of gender discrimination. It is now being recognized that the goals of democracy of the people, for the people and by the people cannot be fully realized if the female population are not included in all ways in the processes of socio-economic and political development. That is why, besides constitutional provisions, several laws have been enacted, policies have been made and implemented, and institutional reforms have been carried out for the development of women. The 73rd and 74th Amendments of Indian Constitution in 1993 are the milestones in the process of political empowerment of women. These amendments have reserved 1/3 of the seats in the Panchayati Raj institutions, municipalities, and municipal corporations. Another significant development has been the adoption of the National Policy for Empowerment of Women in 2001, the overarching goal of which is to bring about the advancement, development, and empowerment of women. But a lot needs to be done to attain this goal. तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है क्या कि जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग बार बार इसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये तब तक इसको हम लोग पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक जो फीमेल पॉपुलेशन है उनको भी इस प्रोसेस में इंक्लूड ना कर दिया जाए, क्योंकि फीमेल जो है वो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। एंड अगर उनका जो सोशियो इकोनॉमिक या फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ना हो तो इट मीन्स जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए नहीं है। इस सबके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, इनको लागू भी किए गए हैं पॉलिसीज को, जिससे हमारा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ है एंड इसमें वुमेन्स का डेवलपमेंट भी किया गया है। 73rd और जो 74 अमेंडमेंट्स हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1993 में, ये एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए माइलस्टोन साबित हुआ है कि इसमें लोगों के जो विमेन्स है उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दी गई है। एंड ये जो अमेंडमेंट है वो रिजर्व करता है 1/3 ऑफ सीट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या फिर म्युनिसिपैलिटीज हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वहां पे विमेन को 1/3 सीट्स उनका रिजर्व किया गया है। इसका एक अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्या कि जो नेशनल पॉलिसी एक है हम लोग का विमेन के एम्पावरमेंट का, जो कि 2001 में बनाया गया था। इसका एक क्या लक्ष्य है कि ये एडवांसमेंट लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, एम्पावरमेंट लाएगा विमेन के अंदर। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ अभी करना है इस लक्ष्य को पाने के लिए कि विमेन को भी इक्वल पोजीशन मिल सके हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में। रिमूवल ऑफ रीजनल इम्बैलेंस. Redressing regional imbalances has indeed been a vital objective of the planning process in India. Efforts are on to reduce regional disparities. Besides the state-specific efforts for reducing intra-state regional disparities, a number of centrally sponsored programs have been in operation for the last 2 to 3 decades for taking care of specific aspects of backwardness of such regions. तो जो भी रीजनल इम्बैलेंस है उसको कैसे रिमूव किया जाएगा। ये जो रीजनल इम्बैलेंस है वो सच में इसका एक बहुत बड़ा मतलब कि ये हम लोग का रुकावट है हम लोग के इंडिया का प्रोग्रेस में। बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि रीजनल डिस्पैरिटीज को कम किया जा सके। इन सब के अलावा जो स्टेट है वो भी अलग से ट्राई कर रहा है, उनका भी अलग से वो एफर्ट लगा रहे हैं कि वो इंट्रा स्टेट रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सके।
बहुत सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी लागू किए गए हैं इसके ऑपरेशन में कि लास्ट 2 से 3 डिकेड्स में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी बैकवर्डनेस है ऐसे क्लासेस का, ऐसे रीजन्स का, उसको कम किया जा सके। Are you aware of any such program being implemented in your area? Some of the major programs are the Tribal Development Program, the Hill Area Development Program, the Border Area Development Program, the Western Ghat Development Program, the Drought Prone Area Program, and the Desert Development Program. तो आप क्या जो भी ऐसे कुछ प्लान्स है जो आपके क्षेत्र में लागू किए गए, क्या आप उसके बारे में जागरूक है? कुछ ऐसे मुख्य जो प्रोग्राम्स है जो लागू किए गए हैं अभी तक, वो है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनजाति जितने भी आदिवासी उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, हिल एरिया में जितने लोग हैं उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, बॉर्डर एरिया में जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, वेस्टर्न घाट की जो रहने वाले उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चल रहा है, जो सुखाड़ में जिस क्षेत्र में सूखा आ जाता है उस एरिया को सुधारने का प्रोग्राम चल रहा है, एंड जो डेजर्ट के डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। For the development of Northeast states, a certain percentage is embarked from the budget for each development scheme or program in the region. While the development of the backward regions is a national responsibility, the state and the local leadership also have significant role to play. Unless the local leadership, political, bureaucratic, and intellectual resolves to usher in development based on sharing the benefits on egalitarian basis with the masses, results will be hard to come by. Resources are not the real constraints. It is the way resources are spent that remains the fundamental concern. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ परसेंटेज है जिसको ईयर मार्क किया गया है बजट से, एंड जितने भी डेवलपमेंट स्कीम है या प्रोग्राम है उस रीजन से उस पर वो लोग ध्यान दे रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है बैकवर्ड रीजन्स का, वो एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स पूरे राष्ट्र का जिम्मेदार है कि जो भी लोग बैकवर्ड है उसको वो, चाहे वो स्टेट पे हो या फिर जो भी लोकल लीडरशिप पे हो, उनको वो आगे लेके आए। जब तक ये लोकल लीडरशिप जैसे कि पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, ब्यूरोक्रेटिक हो या फिर इंटेलेक्चुअल हो, जब तक ये इसमें जो भी समस्या है उसको ये लोग रिजॉल्व नहीं करते हैं, डेवलपमेंट बेस्ड के जो भी बेनिफिट्स है उसको ये लोग देखते नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है इसकी, एंड इसको जब तक ये लोग देखेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला और इसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो कि रियल कॉन्स्ट्रेंट्स में नहीं आते हैं, एंड एक ऐसा रिसोर्स है जो अभी तक फंडामेंटल कंसर्न मीन्स इसके ऊपर अभी भी बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। Administrative and judicial reforms. The success of all the above stated corrective measures primarily depends on the efficient functioning of administration and independence and righteousness of the judicial system. But on both counts, a lot needs to be done. The performance of public administration in India has come under close scrutiny in the last few years. Rampant corruption, inefficiencies, vestiges, and irresponsiveness to the needs of citizens are some of the commonly acknowledged problems afflicting the administration. No doubt, the Indian judiciary has remained independent and neutral. There are serious problems of slow disposal of cases leading to delays as well as accumulation of backlog and very low rate of prosecution in criminal cases. तो हम लोगों ने जितने भी अभी करेक्टिव मेजर्स को देखा जो कि डिपेंड करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन पे, हमारे इंडिपेंडेंस पे एंड राइटेशनेस पे, जो भी जुडिशियल सिस्टम है उसके सही काम करने के तरीके पे, ये सब इफेक्ट डालता है। लेकिन हम लोग जब देखें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें भी है जिसको अभी भी सुधारने की हम लोग उसको कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, वो अभी उस पर हम लोग गहरी समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि कुछ लास्ट फ्यू ईयर से क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे हमारा जो रामपंट करप्शन है मीन्स इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, लोग जो भी इससे जुड़े हुए उनमें अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ रहे। तो ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो प्रॉब्लम है वो बना रहेगा और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वर्क नहीं करेगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो इंडियन जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है एंड न्यूट्रल है, मीन्स वो किसी के पक्ष में भी नहीं बोलता है। फिर भी हम लोग के पास कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग को देखना है। जो भी केसेस होता है वो बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा खींचा चला जाता है केस और बहुत उसमें डिलेज होते हैं। एंड जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो प्रोसिक्यूशन जो रेट है वो भी बहुत कम है।
Administrative reforms have continuously been on the agenda of the government ever since independence. A number of commissions and committees have been set up in this regard, but bureaucratic reluctance to change has prevented the reforms to take place in full measure. The recommendations of various commissions and committees focus around the need to make administration accountable and citizen friendly, to build its capacity for quality governance, to orient administration for promoting people's participation, decentralization, and devolution of powers, to make administrative decision making process transparent, to improve the performance and integrity of the public services, to reinforce ethics in administration, and to include readiness for e-governance. जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा और ये एक बहुत बड़ा हमारे गवर्नमेंट का एजेंडा बन चुका है जब से हमें आज़ादी मिली है। लोग अपने जो शासन करने का तरीका है उसमें वो लोग लगातार सुधार लाते जा रहे हैं। बहुत सारे कमीशन और कमिटीज बैठाए गए हैं, सेट किए गए इसके रिगार्ड में कि किस तरह से हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है। लेकिन जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक रिलेक्टेंस है उसे अभी चेंज होने की जरूरत है और ये अभी बहुत सारे मेजर्स मतलब बहुत सारे स्टेप्स भी उठा रहे हैं अपने रिफॉर्म्स में। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस है वेरियस कमीशंस और कमिटीज का जो कि अभी फोकस कर रहे हैं। पहला इनका फोकस है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन है उसे नागरिकों के जितने भी नागरिक है देश के उनके अनुकूल बना सके, मीन्स उनसे फ्रेंडली बना सके। ये कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं गवर्नेंस के क्वालिटी में कि जो हमारा जो भी सरकार है उसका क्वालिटी अच्छा हो, उसके पास कैपेसिटी हो कि वो लोगों की जरूरतों को देख सके एंड उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रमोट करते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन को कि जो लोग हैं वो अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्टिसिपेट कर सके, गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज या फिर डिवॉल्व कर सके उनके पावर्स को। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बना सके, ये इम्प्रूव कर सके अपने पब्लिक सर्विसेज के इंटीग्रिटी में, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे पब्लिक से रिलेटेड उस सर्विस में भी ये इस चीज को इम्प्रूव कर सके। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एथिक्स है या फिर उसके जो भी ई गवर्नेंस है उनको भी ये ध्यान में रख के आगे बढ़ सके। Judicial reform also has been a critical concern since law. Various recommendations have been made on many occasions. The major issues that need consideration in this regard are simplification of rules and procedures, repealing outdated laws, increasing the judge population ratio, time-bound filling of vacant posts in judiciary, transparency in appointment, promotion and transfer of judges, judicial अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जो जुडिशियल रिफॉर्म है वो भी एक क्रिटिकल कंसर्न है। बहुत ही लंबे समय से बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस भी किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स पे बनाए गए रिकमेंडेशंस की किस तरह से हम लोग का जुडिशियली रिफॉर्म होना चाहिए। एंड इसकी बहुत बड़ी जो समस्या है, जो मुद्दाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से कि जो भी रूल्स और जो प्रोसीड्यूर्स है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। मीन्स जो भी लोकल पीपल है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते, रिमोट एरिया से आते, उस रूल्स को उस प्रोसीड्यूर्स को समझ सके। जो भी आउटडेटेड लॉज है उसको वो लोग रिपील कर सके और जज का जो पॉपुलेशन रेशियो है उसको वो इंक्रीज कर सके। जब कोई भी पोस्ट जुडिशियरी में वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसको टाइम रहता है उसको भरना जरूरी है। जजेस का जो ट्रांसफर है, प्रमोशन या अपॉइंटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जुडिशियल जो है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो लोगों की अकाउंटेबिलिटी मीन्स लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एंड जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोग उसको समझ सके। Sustainable development, economic, social, environmental. Indian democracy can adequately respond to all the challenges when it moves forward on the path of sustainable development. A model of development without taking into account the basic needs of millions today as well as in the future cannot be conducive for the survival of democracy. Development has to be human-centered and directed towards improvement of quality of life of all the people. It has to be focused on removal of poverty, ignorance, discrimination, disease and unemployment. The development process has to aim at sustained economic, social and environmental development. हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस को इसने रिस्पॉन्ड किया है एंड इस चीज को लेते हुए हम लोग आगे डेवलप भी कर रहे हैं। हमारा जो डेवलपमेंट है
उसमें बहुत सारे नीड्स है, मिलियंस ऑफ पीपल्स के नीड्स है, एंड साथ में जो हमारा फ्यूचर है उनकी भी ज़रूरतें हैं, एंड जो भी हमारा जो डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रहा है, तो वो उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करना है, एंड जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, मीन्स मानव को केंद्र में रख के डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो भी लाइफ का क्वालिटी उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सब लोगों के, ये नहीं कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, मीन्स सबका इक्वली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एंड ये इस पे फोकस होना चाहिए कि जो भी गरीबी है, जो लोग इग्नोर हो रहे हैं, जिनसे भेदभाव किया जा रहा है, बीमारियां हैं, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जिनके पास जॉब नहीं है, तो इन सब चीज को रिमूव करना है। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसका एम है कि ये सस्टेनेबली सबको लेके एक साथ चले, मीन्स इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट हो सके, सोशली भी हम लोग डेवलपमेंट इनका हो सके, और इन्वायरमेंटली भी डेवलपमेंट हो सके। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 23.3। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.